everyone. And so this is our 12th conversation, and I think we all know that. And this time we have, okay, I am Dr. Neeta Mishra, doctor, the PhD doctor types, not the real doctor. And I am now what you called the new Irish, been here 14 years. I teach and I do research on social inclusion. So this is one way of saying that the Proud Depressive movement, it is kind of social. It's an inclusion, it's a movement to include people who feel marginalized. So we are all part of this social inclusion project. I work in Vietnam, although I live in Dublin. Because of COVID, I work from here. But you are all very welcome. And I will leave it to our two distinguished speakers today to introduce themselves. But a very quick one is that we have Dr. Abhishek Shankar, who's an oncologist, and we have Rama Prakash Sinha. You're very welcome to share your story, and you're very brave. And it would be great if we all share wherever we can link through in this conversation today, and share and be open. This is a very safe space. And I'm proud to be part of this Proud Depressive movement. And thank you all for being here. And I'll now hand it over to Rama. Rama, are you ready? Yes. Hello everyone. Thank you. This is Rama Prakash Sinha. And today I'll be the speaker who will be speaking about myself, my journey, and about my disease also. Because Dr. Abhishek Shankar sir is also here, so he'll be asking me to talk about it. And I do want to share my mental health issues and also the current problem that I'm going through. So let's begin the session. I can go ahead with his questions. Good morning, everyone, and good afternoon, everyone. I'm Dr. Abhishek, and I'm an oncologist, and I work for cancer care in India. And my area of interest is disparity and inequality in access to cancer care, socio-cultural determinants of cancer care, prevention and screening, which is most important but often ignored issues in India. So we are concentrating on that and how to ensure the quality of life to a cancer patient, because we always thought of clinical complete response, pathological complete response, radiological complete response, but we never tried to add life to each and every day which a cancer patient wants in their life. So we are working on all those socio-cultural issues which an oncologist is very difficult to concentrate in a mad race of patients where so many patients you see in your clinic and you hardly able to concentrate, the patient who comes to visit you. So this I will try to form. मैं सवाल पूछूंगा बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे सेशन में आई थिंक रमा मैम है, क्योंकि ये पूरा जो सेशन है उन्हीं के इन एंड अराउंड चलेगा और सबको ये इंटरेस्ट है जानने में. सी इज अ ब्रेव लेडी एंड द वे सी इज फेसिंग एंड पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से वो जाके हिम्मत बिना हारे हुए ट्रीटमेंट को ले रही हैं, ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर पे जाना चाहते हैं, और इस दौरान मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि भाई कितना सारा ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी के बाकी कॉम्प्लिकेशंस के दौरान आप एक वेबिनार में स्पीकर हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. और मुझे लगता है कि कैंसर पेशेंट की ये पॉजिटिविटी एक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ आम लोगों को लाइफ सीखने में बहुत मदद करती है. और मुझे लगता है जितनी ह्यूमन वैल्यूज मैंने कैंसर पेशेंट से सीखी है, probably they are the important source of learning for our society. So thank you very much, I think, for teaching us what is important apart from life important subjects. You taught us very important objects which we deal with day to day life. So मुझे लगता है कैंसर केयर इन इंडिया सबको पता है. जिन लोगों के घर में कैंसर का दायरा बढ़ते गया है और अब इसकी पहुंच मुझे लगता है इंडिया के सारे घरों तक है. मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी फैमिली में एक आदमी कम से कम कैंसर से पीड़ित नहीं है. आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज की, जो कि बहुत पुअरली अंडरस्टूड है. लोग खुद से ही मतलब मूड लो होना डिप्रेशन नहीं है, जबकि बातचीत की भाषा में किसी को भी अगर आप पूछेंगे तो ये बोलेंगे कल मैं बहुत डिप्रेस था, आज मैं ठीक फील कर रहा हूँ. आई थिंक डिप्रेशन
needs to be defined in a better way. और आम बातचीत की भाषा, लो मूड, अगर डिप्रेशन है तो मुझे लगता है मतलब इंडिया में हर एक वो आदमी जो जिंदगी जी रहा है सब डिप्रेस्ड हैं. सो मैम, सबसे पहले हाउ डिड यू नो अबाउट द डिजीज? जब आपको सिम्टम हुआ तो आपको कभी लगा क्या कि ये शायद कैंसर हो सकता है? और जब आपको पहली बार ये पता चला कि हाँ ये कैंसर है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगा, मैं लोगों को समझा तो सकता हूँ, बट जब मुझे पता चला माई फादर इज हैविंग ए कैंसर, मेरा पहला रिएक्शन था स्टार्टेड क्राइंग. सो यू नो हाउ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज हम दूसरों को बहुत बल देते हैं, वी मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब होता है, यू विल बी ट्रीटेड. बट यू नो, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? प्लीज टेल अस. सर, आई वुड लाइक टू टेल यू, जब मुझे पिछले साल अप्रैल मई में मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी, इन द सेंस आई हैड ड्राई कॉफ, एंड मुझे मतलब मुझे ड्राई कॉफ होता था और कुछ नहीं होता था. एंड या समटाइम्स आई यूज्ड टू, आई विल से वेरी ऑनेस्टली, आई यूज्ड टू पास यूरिन व्हाइल वर्किंग इन द किचन एंड ऑल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. तो आई जस्ट इग्नोर्ड दोज सिम्टम्स. दे आर द वेरी big symptoms of ovarian cancer which I came to know later. But at that age, अच्छा ऐसा होता है. Many people said, I talked cousin of mine, she's a doctor, she's a gynecologist. I had a problem in day one, but after about 2 months, about in June or July, I did tell her, and she said कि हाँ ऐसा होता है, बहुत लोग को एज होने से ये सब होता है, कुछ sometimes the muscles get weakened and all, so you don't have to worry. I even said to her that my tummy has really enlarged. I was never a fat girl, but now my weight कम हो रहा है, और जो मैं चाहती थी करना, लेकिन ये मेरा पेट क्यों बड़ा हो रहा है? तो although I talked to her, but she also did not, never did she when once she thought ऐसा भी कुछ हो सकता. So it was all right. Then my son, he felt कि मम्मा को वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकाल के बकेट में ले जाने में डाल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. I used to ask them for help. In my life, I never asked them for help कि मेरा कपड़ा उठा के बाहर रख दो तो मैं फैलाऊंगी. So he did not find it good. Then he talked to his dad. He said, मम्मा की तबीयत नहीं, पापा इनको दिखाओ डॉक्टर से. She's not well. So he was the first person who went to his father. I had never said, I had never complained anything. Lockdown चला था, kids नहीं आती, तो अपने से काम करते थे. But तब वो से कभी कुछ नहीं बोला. बच्चे मेरे दोनों घर में थे, लेकिन उनसे कभी कोई काम नहीं करवाती थी, except कि बाल्टी उठा के बाहर रख दो. And then he said, and my husband, that was late in the night, I had already gone off to sleep. So my husband did the right thing. He called up his family physician in Patna. So he called up and he said that sir, ऐसा कुछ हो रहा है and रमा को ये प्रॉब्लम है, so what should be done about it? So since he is our family physician, he said कि अगर ऐसा है और खांसी है और वेट भी बहुत कम हो गया है जैसा आप बता रहे हो, तो पहले तो इसका सीटी लंग्स का करो. तो उसी दिन जाके हमने सीटी कराई. It had got the CT done in around August. And CT came out that very next day, and the doctor said कि नहीं इनको ये है, TB है, tuberculosis, because my right lung was submerged with that pleural ये. तो he said कि आप इसको ये करवा दीजिए, इसका pleural effusion कराइए. So we went to Max Vaishali only, and we saw a pulmonologist, Dr. Sharad Joshi. So now it was up to Sharad Joshi to tell me what was the problem. I told him that मेरा पेट में कुछ problem है, but he just ignored it. He said, "We'll see to it, see to that later." और उन्होंने मेरा वो देखा CT और उन्होंने कहा कि हाँ TB है. उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दे दिए, and मेरे ये फैमिली physician भी वही सेम मेडिसिन दिए जो TB के स्टैंडर्ड मेडिसिन. And for almost 3 months, I was also feeling better now because मुझे अब उल्टियाँ आनी बंद हो गई. I could eat a little bit because earlier I was not eating anything. Whatever I ate, I just puked. So now the situation had improved. But in December, we again checked the weight, just as in on 8th of December night. And when I saw that my weight was again had fallen to around 3 more kg, then
the alarming bell was pressed. He again called up the physician in the morning and he said कि नो ये तो गलत है, क्योंकि अगर वो ठीक हो रही है तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसका वेट कम हो रहा है, तो इसके सीटी एब्डोमेन का कराइए और अल्ट्रासाउंड भी एब्डोमेन का कराइए। तो हमने सीटी एब्डोमेन का और अल्ट्रासाउंड भी दोनों का कराया 9 दिसंबर को। तो आ गया वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है ये मैलिग्नेंसी है और ये इनको ओवेरियन कैंसर है, तो आप उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। So we booked an appointment in the Max itself, and on 10th of December I went there. But the first doctor I met with, she was an onco surgeon. She was a lady, and she was, I think, was not in good mood, or I don't know what. She was like scolding me, and behaving as if I was a culprit, that I have this disease, and I have come so late. I was not aware. बोले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था? बोले नहीं, सिर्फ खांसी होती थी, वो भी कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। तो बोले आपको इतने से आपको कुछ नहीं समझ में आया, क्या हो सकता है, आपको कुछ नहीं हो सकता है। वेरी पेसिमिस्टिक, वेरी 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 रूड, वेरी पेसिमिस्टिक। हम बोले आर यू श्योर दैट आई हैव कैंसर? बोले यस, आपका रिपोर्ट्स तो आप लाए हैं उससे यही होता है, वैसे हम बायोप्सी करा लेंगे लेकिन ये वही है। तो आफ्टर हाफ एन आवर आई लिसन टू अ लेक्चर एंड देन आई पुल्ड अप माय सॉक्स। आई सेड मैम जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो आपसे बात सुनने से क्या फायदा, हम जा रहे हैं, और उठ गए। उसके बाद she had called another oncologist, medical oncologist who was sitting right next, but in the next cabin. So he had come and he was listening to, I think, the whole conversation. So I just talked out, then my husband had to also follow me. So he said कि अब क्या करोगी? हमने हमको नहीं दिखाना है, कोई तो बोली जा रही है मरने ही वाला है, तो मर जाएंगे घर में, अब हम क्यों दिखाएं? Then that doctor beckoned to us. That doctor called us to his room, and then बहुत पैसिफाई करके अच्छे से हमको समझाया कि ठीक है कि आपको ऑपरेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आपका कीमो हो सकता है और मैं कीमो करूंगा। अभी आपका बायोप्सी कब होएगा, कल से कल बायोप्सी के लिए करूंगा, पेट करूंगा, एंड देन ये तो है कि ये डिजीज है और कैंसर ही है, 99% श्योर है, लेकिन जब एक बार बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी देन यू विल कम। तो दैट है। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, सर ने बताया कि जैसे जैसे करना है, हम बोले ठीक। एंड तब तक it had stung to me that now I am suffering from cancer. But since she had scolded me and behaved in such a rude manner with me, I became defensive. मुझे कहा कोई बात नहीं, मैं मरने वाली हूँ तो मैं मर जाऊंगी, कोई हर्ज नहीं हो सकती, कि आपका डांट सुनने के लिए तो मैं आई नहीं हूँ यहाँ, तो मैं जा रही हूँ। तो खैर वो सर ने बहुत अच्छे से बताया और उसके बाद 8 दिन बाद बताया, और फिर नेक्स्ट डे बायोप्सी रिपोर्ट आई, मैं खुश हूँ। So when I came home, I told my children, my husband was against it. He said कि बच्चे हैं, अभी एग्जाम है, तो तुम एकदम मत बताओ, ऐसा बात कभी कोई सुना नहीं है, कभी तुम बीमार नहीं पड़ी हो, अचानक इतनी बड़ी बीमारी, you can't tell. But I couldn't take it because I have always been very honest with my kids or with anybody. You know me, they know she is a very honest person, but I can't hide this fact from them. मैं नहीं ये चाहूंगी कि किसी दूसरे को पता चले कि मम्मा को ये बीमारी, क्योंकि we're just waiting on the gate when I came back. फिर मैं छिपा के मैंने उसको उन दोनों को बता दिया। तो they were like कि तुम कंफर्म हो, ले बायोप्सी का रिपोर्ट आ जाने दो। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई तो पता ही चल गया, फिर कीमो होने लगा। And then from that time onwards I thought कि now I have to live for myself, my children, and then my friends came. That was the biggest thing that happened to me. So many of my friends, when I wrote it on my Facebook. Now I am suffering from this problem. I was asked to somebody called me up and she asked me, that lady, कि आप इस तरह का बात कोई लगाता थोड़ी है, इस तरह का बात मत लगाओ तुम। हम बोले हम तो बताएंगे, अब मेरे मरने के बाद आ रहा है तुम लोग लिखोगे वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन अभी हमको बताने दो, मैं लिखूंगी। एंड आई जस्ट रोट। उसमें बहुत लोगों का फोन आया, उसमें कुछ लोग को मुझे फील हुआ कि दे रियली वांट टू हेल्प मी आउट। फ्यू फ्रेंड्स जिनको मुझे पता चल गया कि उनको वो वाइफ है, उन्होंने फोन किया मुझे, और जब मैं उनसे बात करना शुरू की तब मैंने उनको बोला कि ये डिजीज है, वो इतना कैसे लगेगा, ऐसे होगा, बट मैं डरी हुई थी कि कैसे ठीक होगा, हम नहीं जाएंगे दिखाने। देन दे सेड कि तुम ऐसे मत करो, तुम जाओ, तुमको सबके लिए करना है, हम लोग के लिए ऐसे करना है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि यू आर पार्ट ऑफ अस, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर ऑल अलोन? Part of us, and that was a very
वेरी बिग लॉस। अब मुझे ये बताइए कि रुकिए, मुझे ये बताइए कि बिहार में ना या पूरे इंडिया में हमारी ये सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट यूएसपी है, कोई आपको कुछ दे ना दे, फ्री का एडवाइस बहुत देता है। तो मैं चाहूंगा कि वो सब जो एकदम खतरनाक वाला एडवाइस है ना, जो आपको लोग दिया गया बाबा रामदेव से लेके निर्मल बाबा वाला, प्लीज बताइए। हाँ, जानते हैं सर, वो जो खतरनाक एडवाइस वाले लोग आते थे ना, वो बड़ा क्या कहते हैं ना, बहुत अमली जामा फैला के बात करते थे कि बड़ा अच्छा एकदम चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ आपको डरा ही रहे हैं। तो हम बोले देखिए, अब इन लोग से बात कर, हम राजीव को कह दी कि देखो हमको फोन मत दिया करो जिसका जो हमको ऐसे ऐसे बात करता हो। इन हम लोग का नाम हम लिख के दे दी कि इन लोगों का फोन हमको नहीं बात करना है, तो तुम पहले तो छोड़ दो, उसका जिससे हमको बात करने का मन करेगा हम कर लेंगे। वो लोग का नाम ना हमको भी बता दीजिए, फेसबुक पे डाल देंगे कि नहीं सर, फेसबुक पर नहीं, उसको खुद समझना होता है और खुद उन लोग को अपने आप से चुपचाप से दूर कर देना होता है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेंगे कहीं, भले आपको और इतना पिटी करेंगे, इतना सिंपैथी करेंगे, एम्पैथी नहीं सिंपैथी करेंगे कि आपको और लेट डाउन होगा। आई वांटेड टू लिव माय लाइफ विद डिग्निटी एंड डाई विद डिग्निटी। मुझे अब उन लोगों से कोई ये नहीं था जो हमको झूठ मूठ का ऐसे ही कुछ बोलते रहे, बाबा रामदेव वाला सजेशन देने के लिए बैठ गए। एक दो लोग ने तो मुझे फोन करके ये बोला कि तुम कीमो छुड़वा दो। थर्ड के बाद उसने कहा कि तुम तो लगती ही नहीं हो कैंसर पेशेंट। मैंने कहा कि मैं किचन से भी एक सब्जी बना के आई हूँ, जस्ट एक सब्जी, और उसमें बहुत कम टाइम लगा था मुझे, क्योंकि आई एम वेरी फास्ट कुक। सब्जी बनाई थी आप? हाँ, बहुत पहले, 3 जनवरी की बात है। क्योंकि तो इतना कम टाइम लगा तो हम लोग को भी बता दीजिए। आलू बैगन का, बिहार का आलू बैगन का फोरन वाला सब्जी, तो इतना टाइम कम लगता है, तो उसमें इतना कम टाइम लगता है तो हम बना दिए। पराठा पूरी के साथ खा लेता आदमी आराम से, रोटी के साथ, तो हम बना के चले गए अपने रूम में आ गए। देन शी कॉल्ड अप एंड शी सेड, अच्छा तुम खाना बनाती हो? मैंने खाना नहीं यार, कैंसर में तुम पराठा पूरी खा रही हो? नहीं, और लोग खाते हैं कि नहीं घर में? और लोग, उन लोग नहीं खा रहा है ना, हम रोटी खाते हैं, लेकिन उन लोग तो खाएगा ना पराठा या रोटी। तो वैसे कैंसर में पराठा खाना कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। अच्छा, मना नहीं है? बिल्कुल मना नहीं है। नहीं, हमको आजकल पसंद नहीं आता घी सर, इसलिए नहीं खाते, लेकिन कभी कभी अर्चना दी हम खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कोई प्रिपरेशन के साथ हम खाते भी हैं, लेकिन हमेशा नहीं। पूरी एकदम नहीं खा पाते हैं, पूरी अच्छा नहीं लगता, तो पूरी हम पहले भी नहीं कम खाते थे, बहुत कम खाते। झाल मुड़ी पसंद है क्या? क्या झाल मुड़ी बहुत पसंद है? अच्छा, गोलगप्पा, झाल मुड़ी, लड़की वाला सब पसंद है सब। अभी तो उसका टेस्ट ही लगता है। गोलगप्पा हाँ, पटना में भी खाते हैं। नहीं, पटना में गोलगप्पा नहीं, फुचका बोलते हैं, मालूम है। तो नहीं, वो सब हमको अभी भी पसंद है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, जबकि अब बहुत सी चीजों का टेस्ट खराब हो गया है। मतलब आई डोंट लाइक मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ द कीमो, बट गोलगप्पा अभी भी अच्छा लगता है। पैंडेमिक में एक्चुअली क्वालिटी ऑफ फूड खराब हो गया, आपका टेस्ट ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। few things I even relish now. So, आप ये बताइए कि आपके मेंटल जो स्टेटस पे है कितना फर्क पड़ा? जैसे घर में चीजें जो पहले थी कि उसमें कितना चेंज हो गया? जो आपके बच्चे थे जरूरत से ज्यादा आपका ख्याल रखने लगे, या फिर उनको लगा ऐसे कि आप कहीं अकेले ना फील करो, इसलिए दे बिकम मोर? ऐसा 2-3 दिन लगातार हुआ मेरे साथ। जब उनको पता चल गया कि ना आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एनॉर्मस डिजीज, तो वो बार बार आके, जब मैं सोई रहती थी ना, तो दोनों चुपचाप से मेरे पास आके देखता था कि मम्मी इज अलाइव और डेड। वो लोग डर के मारे चुपचाप से मेरी तरफ देखता रहता था, कुछ बोलता नहीं था। सो दे वर रियली टेरिफाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट दे वुड नेवर से टू मी एनीथिंग, बट वो आके देखता था, फिर वो देखता था कि मम्मा कुछ कर रही है तो हेल्प कर दे। जैसे पहले ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना था कि ऐसा है नहीं कि हम टेबल पर कुछ ला के रख रहे हो तो वो उठा के ले जाए, बट अब ऐसा लोग करने लगे थे। फिर आई थॉट कि थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करने दो, एंड लेट देम फील दैट आई एम ओके। जहाँ पर जरूरत होगी वहां पर उनका हमको चाहिए, बट लेट देम फील दैट आई एम ओके। और उस समय काफी ओके भी थी, इनफैक्ट अभी भी ओके है, तो हम बहुत कुछ कर लेते थे। अब ये है कि अब खाना वाना बनाने में दिक्कत होती है, कुछ नहीं बनाते, अब मन नहीं करता कुछ करने का तो नहीं करते। बट अभी भी अगर कुछ जैसे किचन में गए तो थोड़ा सा सब्जी चला दिए या सब्जी खाली कर दिए, जो होता है घर की लेडीज लोग का काम, वो सब मैं अभी भी करती हूँ, जस्ट टू मेक देम फील दैट आई एम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, मेरा सबसे बड़ा ईगो बूस्टर और कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे फोन करके इतनी हिम्मत दी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सोची थी कि अब तो मैं मर जाऊंगी और क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, जब शुभांश शताक्षी को फर्क पड़ेगा और राजीव को थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत इसलिए कह रही क्योंकि लड़के लड़के होते हैं तो बच्चों जितना फील करते होंगे शायद हस्बैंड उतना नहीं करता हो, आई डोंट नो, बट हो सकता उसको उतना ही पड़े। लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स लोग ने बोला ना तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम स्टिल वांटेड, आई हैव टू लिव फॉर देम। फिर अर्चना came forward, there is a friend of mine, चेतना, उन्होंने कहा तुम क्यों घबरा रही हो, तुम अपना इलाज करवाओ ना, सब चीज का इंतजाम हो जाएगा। आई वाज वेरी कंस्ट्रेन्ड अबाउट माय फाइनेंसेस। मुझे लगा कि मैं कैसे, इतना महंगा इलाज हो रहा है, कैसे हम करवा पाएंगे, अगर हम ठीक हो भी सकते हैं तो हम कैसे हो पाएंगे, क्योंकि तो इतना पैसा लगेगा एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि हम ठीक हो जाएंगे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। देन आई सेड कि नहीं होगा। देन दे सेड कि तुम डोंट थिंक अबाउट इट। माय हस्बैंड आल्सो सेड कि यू हैव टू गेट ऑलराइट। कैसे होगा इलाज उसका तुम चिंता मत करो, बस तुमको करवाना है इलाज, यू कैन जस्ट नॉट से यू विल नॉट गेट इट डन। उसके बाद से फिर सब चलता आ रहा है, चलते जा रहे हैं, हिम्मत रखे हुए हैं। आपको मैं बोलूँ ना कि आप ना हम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब मैं बिल्कुल, मतलब जिस चीजों में ना यू आर सो पॉजिटिव एंड आई थिंक यू विल कम आउट फ्रॉम द डिजीज फॉर श्योर। और आप जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम देखा और अभी देखा है, यू हैव चेंज योरसेल्फ विद योर पॉजिटिविटी, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग, मतलब वी लर्न पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, so you are the biggest source of inspiration for us. If we smile in our day-to-day life, its credit goes to you. If we see the success of your disease, if you improve, we just feel happy about it. So अब मुझे बताइए कि जैसे बहुत कॉमन है किसी भी डिजीज के साथ, क्रोनिक डिजीजेस के साथ मेंटल जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है, और स्पेशली कैंसर में मतलब अस्पताल आना ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और कैंसर पेशेंट के लिए ये सबसे कॉमन बात है कि आप कीमोथेरेपी के लिए जाइए, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के लिए जाइए, फिर मतलब आपका हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? आपको फैमिली सपोर्ट कैसा था? बिकॉज ये कहा जाता है कि जिन लोगों के पास फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है प्रोबेबली दे आर बेटर। अब आपने एक डॉक्टर की बात की, एक डॉक्टर ने आपसे गंदे तरीके से बात की, एक ने आपसे अच्छे तरीके से बात की। तो देखिए ये दोनों चीजें ना, मुझे लगता है कि ये जो कन्फाउंडर्स हैं, जो आप लोगों से मिलते हो हॉस्पिटल में, जो आपका कंफर्ट है वो आपके मेंटल जो स्ट्रेस को है ना बहुत कम करता है। जैसे मैं एम्स की बात करूंगा, वहाँ मुझे लगता है जो जिस पेशेंट को सुबह आता है ना, जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो ना और आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, वैसा फील होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा। और मैं देखता हूँ जैसे कीमो हो जाता है ना, इट्स लाइक विनिंग लाइक अ वर्ल्ड कप। मतलब मुझे कभी, और एंड एज अ डॉक्टर आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ टू सी दैट स्ट्रेस एंड फियर इन द आई। एम्स को इतना बड़ा लोगों ने बनाया है और वो लोग यहाँ आने से डरते हैं। और आपने किन किन जुगाड़ का प्रयोग किया अपने इलाज के लिए, ये बताइए। इंडिया में जुगाड़ का बात नहीं होना तो फिर मजा नहीं आएगा। जी, जुगाड़ की भी बात करती हूँ सर। तो ये मुझे, आपको जो कॉन्फिडेंस आप मुझ में देख रहे हैं, मैं ये कीमो पेशेंट्स एम्स के मरीजों में ज्यादा देख रही हूँ सर। मैंने बहुत लोगों को देखा है एम्स में, जो द लेडीज दे डोंट वांट टू सिट ऑन द बेड, दे आर प्रोवाइडेड द बेड, बट वो बेड पर है ना, एक तो बेड ऐसे थोड़ा ऊंचा करके रखा रहता है, वो बैठना नहीं चाहती बिकॉज दे डोंट वांट टू फील दैट दे आर डाउन विद समथिंग, बिग इलनेस। तो वो स्टूल पे बैठ के कीमो कराती हैं, जो मैक्स में नहीं होता था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव बात लगा कि इनकी हिम्मत देखो कि बैठ के कीमो करा रही है। बोली नहीं, मैं तो नहीं लेटती। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मुझसे उससे इंस्पिरेशन मिला कि देखो इसको डर नहीं लगता है कि हम तो पहले जाके आराम से लेट जाते हैं कि भाई अब चढ़ाओ, और वो जो है आराम से बैठती, मैं तो नहीं लेटती, अपना वो छोड़ के वहां आ जाएगी और फिर वो बैठ जाएगी स्टूल पर। सो आई फाउंड इट गुड एंड आई टुक इट पॉजिटिवली। आई फाउंड फ्यू पेशेंट्स इन एम्स एटलीस्ट, मैंने देखा कि कुछ अपना ना वो बंद करके, आईवी पाइप को बंद करके छोड़ देते हैं। And then that nurse comes to know about it 10 minutes later when she comes to check on him or her, and then say, कह रही तुम क्या किए हो, तुमने बंद करके छोड़ दिया है। And that person is cool, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगा रही इसको फ्री इलाज हो रहा है और ये अपना आराम से बंद करके बैठा हुआ टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। Then I found a very old lady, उसने bubbles देखा बॉटल में, and then she said she refused to get the chemo done. She was just like, she was कि मुझे निकाल दो मेरा इंजेक्शन और मैं जा रही हूँ। And nurse was like कि भाई को समझाओ, कुछ नहीं, बबल्स आ गया तो आ गया, वो तो इंजेक्शन से हट जाएगा। And I was thinking कि ये लोग अभी तक पे नहीं किए हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पे करके करवाते ना, तो इनको समझ में आता है कि कितना आराम से इनका हो रहा है।
तो बैठना वहाँ बहुत मुश्किल होता है सर। वहाँ जब जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ एम्स जाने के लिए जल्दी भी जाना होता है, तो जब एम्स जाने के लिए जल्दी जाती हूँ तो जुगाड़ में हमको खाने का भी जुगाड़ करके जाना होता है। कुछ लेके जाओ तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो कि कितना लगेगा। 12 बजे शुरू होगा कि 1 बजे शुरू होगा कि 1:30 बजे, तो उतना समय के लिए तुम अपना तैयारी करके जाओ। एंड राजीव इज वेरी सपोर्टिव। जब भी हमको जाना हुआ है तो एकदम ठीक से अपना करके किए जाता है। ये बहुत बड़ा चीज है। बच्चों को तो मैं नहीं ले जाती क्योंकि आई डोंट वांट कि इसको एक्सपोजर हो, तो इसको भी अभी कोरोना के समय में तो मैं तो नहीं ले जाती उन लोगों को, लेकिन राजीव तो हमेशा साथ जाते हैं। एम्स भी जाते हैं, फिर टैपिंग के लिए भी जाते हैं, वो सब तो वो तो जाते हैं। एंड ही इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन दैट सेंस। फैमिली सपोर्ट जब करें तो राजीव इज द बिगेस्ट सपोर्ट। आपने मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे बहुत लोगों में एंजाइटी देखने को मिलता है, ये तो बहुत कॉमन है, कैंसर पेशेंट में ज्यादा ही होता है, बिकॉज यू आर एंशियस कि ये ट्रीटमेंट ठीक होगा कि नहीं, कैसे आगे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। फिर उसके बाद यू फील लो बिकॉज यू आर इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग, एंड पैंडेमिक हैज रियली एडेड मोर टू इट, और बहुत सारे लोगों पर डिस्ट्रेस होता है। सो आपने अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए? हो सकता है आप पहले अपने हेल्थ को लेके इतनी कॉन्शियस नहीं हो, कई लोग योगा करते हैं, कई लोग और थेरेपी का सहारा लेते हैं ताकि वो एक मेंटल बैलेंस है या जो मेंटल स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज कर सकें। आपने अपनी जिंदगी के जो डे टू डे लाइफ में है ना, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं रिलेटेड टू योर डाइट? जैसे किसी ने बताया हो आप ये खाओ, इतने बजे उठो, इसके बाद इतनी देर योगा करो, एक्सरसाइज करो। सो व्हाट ऑल चेंजेस डिड यू इनकॉर्पोरेट इन योर डे टू डे लाइफ to feel better and to fight with the disease in a better way? सर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो मैं करना शुरू कर दी, बिकॉज टू कीप माय लेग्स एंड हैंड एंड एवरीथिंग इन ये। और पहले भी करती थी, बट ये है कि वॉकिंग थोड़ी देर के लिए बालकनी में ही वॉक कर लेना एंड ऑल, आई डू इट एंड आई डू इट फॉर अ पर्पस कि मतलब मैं थोड़ा सा चलती रहूँ। दैट इज द रीजन कि मैं घूमने से भी बाहर आती हूँ। समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा शायद सोडियम कम हो जाता है या जो भी, तो मुझे एकदम उठने का मन नहीं करता है, तब मैं लेटी ही रहती हूँ और एकदम उठ नहीं पाती हूँ। उस वक्त मुझे बहुत डर लगने लगता है। मुझे वो पता चला है कि PS3 को मैंने पढ़ लिया है सर, तो मुझे बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। कौन सा स्कोरिंग पढ़ा आपने, PS1 और 2 वाला? वो PS2 तो उसने लिख दिया था सीनियर रेजिडेंट ने, तो कौन और उसमें PS2 नहीं था मुझे। बहुत सा सिस्टम होता है। PS3 का तो सिम्टम्स और गड़बड़ है सर। PS2 में ये है कि पर्सन बहुत कम देर उठेगा, तो ज्यादा समय लाई डाउन करेगा, और उसमें भी हम बहुत ज्यादा, पिछले महीने के बाद जब मेरा था उस समय हम बहुत सो रहे थे, और उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि अब तो मेरा वो स्टेज आ ही चुका है और मैं बहुत डर गई। नहीं देखिए क्या है ना, अब आदमी 2 दिन तक सो जाएगा तो PS4 में नहीं चला जाएगा। इसका मतलब मैं कई बार PS4 में चला जाता हूँ, मैं तो 2 दिन तक सोता रहता हूँ। तो ये बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, एज पेशेंट ये समझ में नहीं आता, घबराहट हो जाती है। आप गूगल वाला ज्ञान ना मत कीजिए। आप क्या पढ़ाती हैं वो पढ़िए। हम लोग को 15 साल के बाद अभी भी आदमी कंफ्यूज है कि 3 में है कि 4 में है, और आप भाई इतना ज्यादा मत पढ़िए सब। बिल्कुल सर मैं नहीं पढ़ी थी, उन्होंने लिख दिया था। आपके डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अभिषेक क्या है PS क्या है भाई, समझाइए पहले। परफॉर्मेंस स्टेटस मैम ऑफ द कैंसर पेशेंट, उन्होंने PS2 लिख दिया था ना सर, तभी तो मैं डर गई। घर आके पहले पढ़ी उसको और पढ़ के PS मतलब पुलिस सर्विस समझ में आता है। नहीं बाबा, हमारे यहाँ PS का मतलब प्ले स्टेशन है, इसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरा 17 साल का बेटा PS मतलब प्ले स्टेशन। PS2 तो अच्छा फिट हो रहा है, प्ले स्टेशन 2 तो आप ऐसा समझिए। मैम का ये बहुत पॉजिटिव है PS का फुल फॉर्म। Sir, but at that point in time, I was very afraid. In fact, I called up my doctor, Dr. Gupta, and I said कि उन्होंने तो 1 मिनट में देख के मुझे PS2 लिख दिया। उनको कैसे पता चला कि मैं कुछ नहीं काम कर रही हूँ घर में? उस समय होली था और मैंने होली में लगभग सारा खाना बनाया था खुद। अच्छा, तो मैं कुछ पूछना चाह रही थी थोड़ा सा। प्लीज मैम, मैं थोड़ा अपना मॉडरेटर का हैट पहन के पूछ रही हूँ। मैं जो ये जो रिलेशनशिप देख रही हूँ डॉक्टर और पेशेंट में, आई थिंक इट्स अमेजिंग। इट्स लाइक कुछ टीच जैसे लेक्चर्स और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। कभी कभी अगर लेक्चरर अच्छा होता है और कुछ एक कमेंट यहाँ हमारे यहाँ आया, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं है, लेकिन मैम के जीने की अदा ले जाए। So I think that is very encouraging and something fantastic.
एंड वो बात मैं डॉक्टर अभिषेक शंकर से भी कहूंगी, आप में बात ही कुछ और है. But anyway, I just thought I'll try and get something else. इसी बीच में थोड़ा पॉज करके कोई और कुछ बोलना चाहे? तुलिका, अर्चना, लिज, मैं देख रही हूँ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. और कोई कुछ कहना चाहे कि कैसा लगा? आनंदिता, आपको या प्लीज. एक्चुअली रमा मैम, आपको मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. एक्चुअली आपको जब ये मतलब डायग्नोस हुआ था तो आपके जो चिल्ड्रन है उनका मतलब मेंटल स्टेट कैसा था? मतलब लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग ना, पता चलना मतलब ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे कुछ भी हो, आजकल कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे, आए दिन हम लोग को टेंशन होता है कि मम्मी पापा लोग बाजार जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो मतलब डर लगता रहता है. तो मतलब हाउ दे कोप्ड अप विद दिस? हाँ, मैं बताती हूँ. जब मैंने उनको इसलिए मैंने उनको बता दिया था सब कुछ, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू हाइड. माय हस्बैंड डिड नॉट वांट टू टेल देम, बिकॉज माय सन इज टेकिंग हिज 12th, वाज सपोज्ड टू, तो है ही कोई नहीं एग्जाम. तो वो बोला भी वो बहुत अफेक्टेड हो जाएगा, मार्च में एग्जाम्स है, जनवरी में, ये दिसंबर में नहीं बताओ. बट मैंने कहा कि नहीं, मैं बताऊंगी तो जरूर, एंड ही हैज टू नो. एंड धीरे धीरे वो बहुत घबरा गया था. वो बहुत कम बोलता है, एंड ही इज वेरी वेरी अटैच्ड टू मी. जैसे बेटी मेरे पास आके रोने लगी बैठकर, तो वो तो मैंने देखा और वो उसको मैंने समझाया कुछ, लेकिन हाँ रोता नहीं है ना, बात करता है मतलब. लेकिन आई वेंट टू हिज रूम, अचानक मैंने देखा उसको रोते हुए, तो मुझे तब आई वेंट टू हिम एंड सेड कि बेटा तुमको अगर रोना है ना तो तुम रो, मेरे पास रो, मेरे सामने रो. अगर मम्मा को इतना बड़ा डिजीज हुआ है तो तुमको दुख तो लगेगा ही, और तुमको रोगे भी. एंड इसमें नथिंग रॉन्ग, तुम भी रो और उसका हम दोनों मिलके रो. ठीक है, उसके बाद से कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ी अनिता, क्योंकि उसके बाद उसको भी थोड़ा सा हिम्मत जगा के बोले ऐसा हो सकता है कि मम्मा बीमार बहुत हो गई, मम्मा को पता नहीं चला. ही वाज वेरी वेरी सैड. मम्मा यू इग्नोर्ड योर डिजीज, तुम इतना कुछ पढ़ती रहती हो और तुमने कुछ नहीं किया, यू इग्नोर्ड योर डिजीज, तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया, कुछ नहीं किया. ये सब बहुत खुद को भी दुख लग रहा था. बस तुमको जो बोलना है मुझे बोलो, क्योंकि तुम फिर कभी नहीं बोल पाओगे ना, तो अभी बोलो. और अब जब मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, उस वक्त मुझे बहुत डर लगा हुआ था. उसको लगता था कि मेरे पास अब टाइम नहीं है. तो आई जस्ट वांटेड टू टेल देम एवरीथिंग एंड वांटेड हिज रिएक्शन. उसका दुख निकलना. और बोले तुम अपने सब फ्रेंड्स को बता दो, तुमको जो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड्स है जिसको तुम बताना चाहते हो कि माय मम्मा सफरिंग फ्रॉम दिस, टू जस्ट टेल देम. तो तुम कुछ लोग से वो बहुत क्लोज है, मतलब फैमिली में कजन उतना क्लोज नहीं है, बट अपने फ्रेंड्स से बहुत क्लोज है वो. तो मैंने कहा तुम लोग से बात करो और बता दो, कोई हर्ज नहीं है. बोला बता दो आपके बारे में, हमें एकदम बता दो और बोलो. तो उससे उसको बहुत हिम्मत मिला. बहुत लोग बताया, किसी ने एक बहुत क्लोज फ्रेंड है उसने बताया कि उसके नाना है सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर और वो उसके साथ ही रहते हैं. तो ये सब भी उनको सुनने को मिला कि हाँ ऐसा भी होता है, लोग होते हैं एंड दे आर सर्वाइविंग. और फिर पता भी चला कि वो 4-5 साल से उनको है और वो भी है. तो वो आके मुझे बताया कि मम्मा ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत में कुछ हो जाएगा, बिकॉज ही केम एंड टोल्ड मी दिस कि मम्मा ऐसा भी होता है कि जब इलाज कराओ तो कुछ दिन तक आदमी रह सकता है. तो दीज वर पॉजिटिव थिंग्स ही आल्सो सॉ. तो मैंने कहा हाँ बेटा ये ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं आराम से भी रहूं. तो धीरे धीरे उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा एंड दे टॉक्ड अबाउट इट टू अमंग देयर फ्रेंड्स. और जिसको भी वो बताना चाहता था, जो जिससे उसको लगे कि उसको इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज वो बहुत बहुत अकेला हो गया था. वो रूम बंद करके बैठा रहता था और कुछ होता नहीं था. और आई डिड नॉट लाइक इट. राजीव वाज आल्सो वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि वही लड़का था जो बोला था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, पापा को दिखाओगे. तो उसको बहुत ज्यादा अफेक्टेड था वो. देन जब ये सब वो बात बोलना शुरू किया, तो फील किया कि हाँ और लोगों को भी होता है एंड दे सर्वाइव फॉर सम टाइम. So he was good. It was good. And now with Corona coming, Anindita, I must tell you, we are seeing people dying. Like मतलब उसको जानते हो, पता चला कि सब कुछ ठीक था, अभी 10 दिन बाद वो मर गया. तो ये has come as an eye opener for children also. They are very afraid. पर उनको लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई कभी भी मर जाता है. और they are families जो कि पूरा affected हो गया है. So this has come as I can say कि मेरे डिजीज को वो लोग देखने लगा है कि ठीक है ये क्योरेबल है या नहीं, ये वो अलग बात उनको नहीं पता है, लेकिन ठीक है अभी मम्मा है, क्योंकि दे आर सीइंग कि देयर आर मेनी पीपल हु डाइड ऐसे ही. एंड माय फ्रेंड की मदर सुसाइड कर ली
हमारे नेक्स्ट टावर में रहती है। एंड उसके 15-20 दिन पहले उन्होंने एक BMW खरीदा था न्यू, एंड दे हैड गॉन टू सी इट। तो वो समझ में नहीं आया, वो आके बोला मम्मा वो तो बहुत रिच थे, उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे, वो लोग सब खुश भी थे, हम लोग तक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई रहती है उनको कैसे पता चला? बोला नहीं, कभी सुने नहीं थे कुछ। तो हाउ कुछ शिकायत, मुझे बेटा बहुत कुछ होता है लाइफ में, कुछ पता नहीं चलता है, उससे लोग शिकायत करते हैं। कि ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोग हो जाता है किसी के घर में किसी के साथ। तो नाउ दे हैव मतलब उन लोगों को भी थोड़ा सा ये कर गया है, मतलब समझ गया है। एंड मैं भी जो थोड़ा बहुत घूमती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, कभी कभी गाना भी गाती रहती हूँ, उससे उन लोगों को भ्रम बना रहेगा कि मैं ठीक। आपने पैनल डिस्कशन का मतलब रास्ता कहीं और मोड़ दिया, बिना गाना सुने अब आगे नहीं बढ़ेगा। अरे नहीं सर, यस नहीं सर, मैं मतलब असंवैधानिक हो जाएगा अगर मैंने नहीं सर, असंवैधानिक नहीं। पब्लिक डिमांड एक गाना तो होना ही थी। हाँ, सरकारी तंत्र में फंस के फिर मैं सजा का हकदार नहीं बनना चाहता। नहीं सर। तो प्लीज आपको मैम थोड़ा सा कौन यहाँ मतलब ऐसा नहीं आपका इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है। हाँ, वो तो समझ यहाँ पे विशाल ददलानी कोई भी नहीं है जो आपको वो करेगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा। हाँ सर, मैं गा दूंगी, और किसी को कुछ भी और कुछ पूछना है तो कुछ पूछ दो, मैं थोड़ा सा एक लाइन गाना गाने के बाद पूछ लेगा, हो सकता है किसी के गाने पे ही सवाल हो। अभी हमको सोचने दीजिए कौन वाला हमको याद है, क्योंकि याद नहीं रहता है, 2 लाइन से गाते हैं कोई भी गाने का। वो जो आपका फेवरेट हो वही गाना गा दीजिए। बट आपसे अभी सुनने में बहुत मिसाल मिला इस बात का कि कैसे लोग छुपाते हैं, ये बात सही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे खानदान में 2 लोग गए हैं और यहाँ पर भी वो बताते नहीं बच्चों को, और बच्चे अचानक सोचते हैं कि क्या हुआ, हमको बताया कैसे नहीं, बता दिया होता तो हमको भी संभाल लेते। बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया हमें कैसे करते हैं, और आई मीन इट वेरी वेरी एनकरेजिंग और एंड इंस्पायरिंग। आप जब तक गाना सोचेंगे, बट गाना तो अब आपको गाना ही पड़ेगा, शायद हम लोग यहीं पर एक अंताक्षरी हो जाएगी। कोई फिल्मी गाना नहीं मैं गाऊंगी, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, हमारे स्कूल का है और मुझे बहुत पसंद है, मेरे स्कूल डायरी का है। इट टेक्स करेज टू आंसर द कॉल, इट टेक्स करेज टू गिव योर ऑल, इट टेक्स करेज टू रिस्क योर नेम, इट टेक्स करेज टू बी ट्रू। आपको बहुत अच्छा लगता है यार। थैंक यू सर, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। नहीं आपकी आवाज है, प्रोग्राम अलग होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब आप बहुत अच्छा गाती हैं। सब ये बताइए अभिषेक, जी मैम, तुम इतना फ्लर्ट करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बोलेगी कि मी टू से तो मैम U2 चलता है, मी टू से तो मैम कभी फ्लर्ट नहीं करता मेरी आदत। ऐसा अगर डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो जाए तो सब कोई बीमार पड़ने लगे। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इतना खराब वाला डिजीज नहीं, इतना खराब वाला डिजीज नहीं। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहता, चाहे भले ही मेरी दुकान बंद हो जाए लेकिन किसी को कैंसर नहीं हो। I want this मैं कुछ और कर लूंगा मैम, मैं चाय और ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता हूँ। That is a bigger perspective। खिला के झालमुड़ी तो मैं बता रहा ना, रमा मैम आपका पक्का ठीक है। चाय बना रहे अगर आप चाय बना सकते हैं, अपना जारी रखिए क्वेश्चन आंसर। या पैंडेमिक की बात है कि बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई, बट एक बहुत अच्छी बात थी कि जो लोग कभी साथ टाइम नहीं दे पाते थे, कई लोग दिन भर फैमिली के साथ रहे, कई लोग को बहुत अच्छा लगा, और कई लोग के साथ ये बहुत ही खराब थी, आदत नहीं थी इतने समय फैमिली के साथ रहने की। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस मैम, प्लीज शेयर इट विद अस। एक तो डिजीज के बारे में कितना मुश्किल था आम दिनों की बजाय पैंडेमिक में इलाज कराना, जब आप पीक पे थे, जब आप सारे हॉस्पिटल्स वाले आपको हर एक चीजों के पहले बोलते थे RT-PCR की रिपोर्ट ला, उसके बिना आपका ब्लड टेस्ट भी करने से मना करते थे। हाउ डिफिकल्ट इट वाज एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस, यू नो? Sir, it was a very disappointing thing. First of all, because I am suffering from such a enormous disease, I had to go out of the house with my husband. I couldn't go alone क्योंकि मैं
एक तो वो बिना अटेंडेंट के कोई पेशेंट को देखेगा नहीं, तो इसलिए मुझे राजीव के साथ तो जाना ही था, और मैं इतनी हेल्थ अच्छा मेरा है नहीं कि मैं अकेले जाऊँ, तो मैं उनके साथ हर जगह जाना पड़ता था, जाना पड़ता है। तो मुझे पैंडेमिक का सबसे ज्यादा जो ये फील हुआ है कि मुझे पैंडेमिक में इलाज कराने जाना पड़ता है सर, 3 हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एम्स है, कैंसर केयर है, वो वाला दूसरा वाला जहाँ टैपिंग के लिए जाती हूँ, 2 ही बार गई हूँ, फिर मैक्स भी। तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। बट मैंने एक चीज सर, आप एम्स के डॉक्टर है चुकी और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको मैं एक चीज बताऊं, द डॉक्टर्स आर वेरी एफिशिएंट इन ऑल द 3 केसेस। एम्स में टाइम जरूर लगता है, बट एक बार जब शुरू हो जाता है ना, द डॉक्टर्स आर गुड एंड द नर्सेज आर वेरी गुड। आई मस्ट से द नर्सेज आर सो गुड। उनको भी जो इतना हेल्थ हजार्ड है, इतना लोग आता है, पता नहीं कैसे कैसा, तो एम्स में तो पेशेंट्स भी अजीब अजीब टाइप के भी होते हैं, तो सुनते भी नहीं है बात कुछ, लेकिन वो उनके साथ भी बहुत अच्छे से वो ये करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग मुझे लगता है ये नर्स कम्युनिटी में, कि ठीक है वो अपना पीपीई किट लगाकर ही काम करती हैं, बट वो लोग भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि मुझे तो इलाज कराना है ही, तो मुझे तो जाना ही होगा, तो मैं वो रिस्क लेके चलती हूँ। और मुझे हमेशा जाने से पहले मैं बहुत घबराई रहती हूँ, एकदम नहीं मन करता है जाने का, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं छोड़ दूंगी तो वो ऐसे ही डिले हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं जाती हूँ। एंड हाँ, बहुत बार RT-PCR रिपोर्ट के कारण मुझे एम्स में एक दिन मैं बेहोश होकर गिर गई थी सर, RT रूम इटसेल्फ। आई फेल डाउन एंड द डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट फर्स्ट शी सेड कि वो मुझे एडमिट कर लेंगे, ठीक है, एंड शी सेड दैट टू द नर्सेज ओवर देयर कि अगर उनको कुछ चढ़ाना हो या कुछ भी देना हो तो मैं कर दूंगी। उसके बाद पता नहीं क्या उनकी बात हुई और सीनियर डॉक्टर से, और क्या हुआ उसके बाद सेट की नहीं। एंड RT-PCR रिपोर्ट नहीं था, उस समय RT-PCR रिपोर्ट नहीं चाहिए होता था कीमो के लिए, बट RT वार्ड में एडमिट होने के लिए चाहिए होता था। एंड दे जस्ट रिफ्यूज टू टेक मी। माय हस्बैंड वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, डिड एवरीथिंग, बिकॉज बेचारे को इतना दम नहीं उसको सरकारी हॉस्पिटल का समझ में आता है। दे हैव नेवर बीन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कोई पटना में डॉक्टर का बेटा रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये सब चीज भी करना पड़ता है। उसको तब भी समझाया गया कि RT-PCR का मतलब हम लोग को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, तो पता चला ये कोविड टेस्ट को कहते हैं। तो फिर उसके बाद वो बहुत मेहनत किया, लेकिन 2 घंटे बाद हुआ कि नहीं जाना है, तो सर वो दैट वाज बहुत मुश्किल। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपसे ही हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था, फिर वो बना, फिर वो हम लोग को आपने करवाया कि वहां पर हमको कैंसर केयर में जब हुआ, तो आई मस्ट थैंक यू सर। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ टैपिंग कराने के जाने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ एम्स में टैपिंग बहुत मुश्किल था सर, और ये हम लोग को पता नहीं था शुरू में कि चीजों के सिवाय ये सब भी करवाना, प्रोसीजर्स करवाना जरूरी होता है। और अब ये पता चला जब, तो बहुत मतलब लगता है कि कितना मुश्किल है किसी भी पेशेंट के लिए जाना। वहाँ मैंने देखा पेशेंट्स को कि वो आके एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं एंड दे वर नॉट बीइंग एडमिटेड बिकॉज उनका फाइल ही नहीं बना। तो आप बिना फाइल के उनको इमरजेंसी में भी नहीं एडमिट कर रहे हैं, तो वो सीट मुझे बहुत खराब लगा। और अब मैं क्योंकि हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं खुद से देख रही हूँ, मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगा कि क्या बोले। और उनके पास वो भी सही है कि सब पैसे एडमिट कर लेंगे, जगह नहीं है अंदर में, तो ये तो सही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं सर कि अंदर डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंट है। इमरजेंसी के डॉक्टर्स को मैंने 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से देखे हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट। वो लोग कभी भी पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ते, तुरंत देखना शुरू करते हैं। नर्सेज आर वेरी एफिशिएंट, कोई टाइम नहीं वेस्ट करती है, तुरंत कहीं से भी वो जो भी होता है चढ़ाने के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए तुरंत करना शुरू करती है। ये नहीं कि पेशेंट, जैसा हम सुनते थे PMCH के बारे में जो हमारा इंप्रेशन था, तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन मैंने सुना था कि ऐसे होता है ऐसे होता है। लेकिन मैंने यहाँ एक डॉक्टर्स और नर्सेज को बहुत एफिशिएंट पाया। मैक्स में तो एफिशिएंसी है, तो मैक्स तो यू आर पेइंग, बट यहाँ दोनों एफिशिएंसी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये बहुत पॉजिटिव है एंड मतलब ये मुझे अच्छा लगा एम्स का। लेकिन हाँ, एम्स में टाइम बहुत लगता है, बैठने की जगह नहीं है, और पत्थर पर बैठ के दिमाग और खराब हो जाता है वो सब तो होता है सर। हाँ, मुझे मतलब ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और ये सबको फील होता है जितने लोग काम किया है गवर्नमेंट सेटअप में। बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, और ठीक है ट्रीटमेंट आपको मिलता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री में मिलता है, तो लोगों की बहुत भीड़ है। और मतलब जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बिहार, वहाँ से लोगों के लिए एक है कि, और कभी कभी ना
ये जो ट्रस्ट है एम्स के लिए कभी कभी लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ता है, क्योंकि आम लोगों का दिमाग अब हमारी तरह स्टेज स्पेसिफिक नहीं सोचता, प्रोग्नोसिस नहीं सोचता। उनको लगता है कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर हम एम्स पहुंच गए तो एम्स में हम बच जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इसके लिए ना अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और जो हमारा खुद का राज्य है वहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, बिकॉज ये नॉन ग्लैमरस एरिया है। ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो पैसे मिल रहे हैं, आप सीख रहे हो, बट आज के दिन में जब हेड ऑफ द फैमिली की बात घर के सारे लोग नहीं सुनते हैं, कितना डिफिकल्ट है ये बाहर जाके लोगों को ये समझाना कि आप ये नहीं करो, अगर ये लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि हमारा जो क्या है, डॉक्टर के पास जाना ना क्राइसिस का टाइम है, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 4 आदमी कंधे पे बैठा के आपको ले जाएगा अस्पताल, एक्सेप्ट कोविड टाइम। कोविड टाइम में आपको सब चीजें अकेले देखनी है, ज्यादा से ज्यादा आपके घर वालों से आपकी ज्यादा मदद आज के दिन में ओला और उबर के ड्राइवर कर रहे हैं, जो बेचारे ये जानते हुए कि आप कोरोना पीड़ित हैं, पीछे बैठ के आपको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट मैं ये कहूंगा कि आज तक मैंने सैकड़ों पैनल डिस्कशन और लेक्चर लिए होंगे, बट पहली बार मैंने ना किसी पेशेंट से ऐसा इंटरेक्शन किया है, एंड दिस इज द बेस्ट। योर एनर्जी, योर पॉजिटिविटी has really taught us so much. अरे भाई नॉटर डेम में पढ़ी है, जानते नहीं हो हम लोग के स्कूल के बारे में। साला पूरा फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा लग रहा नॉटर डेम में जाके। थैंक यू सर। बट सर हम लोग को लगता है ना मेंटल स्टेटस में, मेंटल हेल्थ का मैं आपको बताऊं, हर कैंसर पेशेंट बहुत वीर होता है और वीरांगना होती है, क्योंकि इतने बड़े डिजीज से लड़ना आसान नहीं है सर। और अब बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, बहुत लोग अच्छे, जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा सजेशंस दे रहे हैं, वो बहुत बेकार सजेशंस भी देते हैं। तो जो भी हो, लेकिन उस सबसे भिड़ना, लड़ना, समझना। रमा जी, मैंने बस हाँ। आपको एक सजेशन दिया था, कौन सा झूठा पहन के आना है। नहीं, there was a lady, she's identified herself as a healer, as a naturopathy healer from America, and मैंने 2-3 सेशन वो फ्री ऐसे ही कर रही थी कि मैं तुमको बात करूंगी, एंड देन आफ्टर 3rd कीमो शी जस्ट सेड कि यू डोंट लुक लाइक अ कीमो पेशेंट, सो प्लीज आप कीमो छुड़वा दीजिए। हम बोले आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? उसी दिन जिस दिन मैंने सब्जी बना के आई थी, उसके बाद ही वो उनके साथ बात कर रही थी। हम बोले ऐसे कैसे छोड़ दे, माय हस्बैंड विल नॉट एग्री एंड नोबडी विल इन माय फैमिली विल एग्री, क्योंकि ये कैंसर बीमारी है। और बोले नहीं तुम कैंसर की पेशेंट नहीं लग रही हो। बोले अच्छा, सारा रिपोर्ट्स, डॉक्टर का रिपोर्ट्स का सारे सब मेडिकल साइंस और 2-2, 3-3 हॉस्पिटल से डॉक्टर्स इतने सब झूठ बोल दिए, और आपकी बात मैं मान के कीमो छोड़ दूं, तो दैट वाज अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से। मैंने उसके बाद उनसे बात करना छोड़ दिया। उस पर शी हैज ट्राइड टू कॉल मी अप मेनी टाइम्स। अभी कोविड में भी उसने कहा कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स एंड दिस दैट। हम बोले करती रहो, मैं कुछ जवाब ही नहीं दे रही, क्योंकि ये आप किसी पेशेंट को अच्छे भाषा में अर्चना दी, वो उल्टा बात बता रही है कि तुम कीमो छोड़ दो 3 कीमो के बाद। हम बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरा हस्बैंड हमको मारेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, माय चिल्ड्रन विल बी वेरी अनहैप्पी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? तो बोली नहीं तुम तो तब ठीक लग रही हो, देखो तुम तो ऐसे कर रही हो, तुमने खुद कहा कि तुम सब्जी बनाए। तो देयर आर पीपल हु जस्ट play down your disease and they don't want you to laugh and talk or sing. If you laugh and talk or sing, they say you are all right, so now since you are all right, so you should not be doing all these things. Okay? हम पेशेंट है, बट आफ्टर कमिंग टू एम्स मैंने एक चीज देखा, इतने पेशेंट है, पूरा पेशेंट की है, आराम से रहती है, कूल। मुझे बहुत मजा आया उन लोग को देखकर, जो जिसको कोई डर नहीं लगता है। एक बोली मैं 4 साल से कीमो करा रही हूँ और उसे कोई डर नहीं लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज देख के। मुझे ये पॉजिटिविटी भी दिखी उन लोगों में कि उनको कुछ पता भी नहीं, उनको ज्यादा डिजीज के बारे में मालूम है, जितना मैं जानती हूँ उतना उन लोग को पता होता भी नहीं है। कोई कह रही है मेरा बंद कर दो, मैं नहीं कराऊंगी, और ये सब बोलने से मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिला कि देखो इसकी हिम्मत, देखो कितना आराम कूल है। तो आई लर्न फ्रॉम देम, आई टुक इट इन अ पॉजिटिव सेंस, एंड मैंने कहा कि मैं इसको गलत सेंस में नहीं लूंगी कि अरे वो बेवकूफ है तो ऐसे कह रही है, नहीं, जस्ट थिंक ऑफ अ हिम्मत कि वो अपना इलाज छोड़ के अपना जाने को तैयार है कि मैं तो नहीं करा, तो जस्ट बिकॉज उसको ऐसा हो रहा है। तो दीज आर मेनी थिंग्स, आप कैसे लेना चाहते हो किसी भी बात को। मुझे लगता है इंडिया के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखा है। मैक्स में आपने मून शॉट अप्रोच देखा, और जो एम्स का ग्राउंड शॉट अप्रोच देखा है ना, वो देखा है।
और बीइंग ए कैंसर पेशेंट जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो दूसरे से सीखने को मिल रही है वो ग्राउंड शॉट अप्रोच है, एंड प्रोबेबली पूरे इंडिया में इस ग्राउंड शॉट अप्रोच मिसिंग है कैंसर। भाई ये अप्रोच क्या है बताइए भाई, आप लोग बड़ा ना मतलब बात कर रहे हैं। तो मून शॉट अप्रोच हो गया कि जैसे नहीं बोलते हैं चांद पे जाने वाला बात कर रहे हैं आप, और जमीन देखिए नहीं रहे हैं आप, तो आपको जमीन पे रह के ना उन चीजों को ठीक करना होगा जिससे पेशेंट को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सो वो आपको एम्स में देखने को मिलेगा जहां पे लोग एक दूसरे के लिए ना सेल्फ हेल्प का काम करते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम करते हैं, कि जहां आपकी जो दिक्कत है ना आपको डॉक्टर के पास भी जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ रही है। एक बाजू वाला पेशेंट आपको बता रहा है अरे हमको ये हुआ था ना, आप ये कीजिए ये फायदा होगा, एंड यू लर्न पॉजिटिविटी। और जो मतलब वहां पे अगर आप जाते हैं उसमें मैक्स में, तो वहां यू आर ट्रीटेड जस्ट लाइक ए कस्टमर, सो दे फुलफिल योर डिमांड एंड यू आर जस्ट पेइंग फॉर द सर्विसेज। डॉक्टर्स आर गुड बट यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज। सो ओवरऑल इस चीजों में आपके एक्सपीरियंस से, जो आपके ग्राउंड शॉट का एक्सपीरियंस था, उससे हमने सीखा बहुत कुछ, और मून शॉट से बहुत सारी चेतावनी हमें दे डाली आपने। तो अब हम चालू करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपको 1 या 2 शब्दों में जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू एडमायर द मोस्ट? डोंट से डोनाल्ड ट्रम्प। इज इट सो डिफिकल्ट? फोनो फ्रेंड आप कर सकते हैं? नहीं सर, या लड़ाई हो जाएगा इसके बाद? नहीं, कुछ फ्रेंड जो मेरे इस समय खड़े हुए सर, आई एडमायर देम द मोस्ट बिकॉज मैंने कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैं नहीं सोच पाई थी कि वो मुझे हेल्प कर पाएंगे इतना। I got the answer. So, yes. What is your dream job? ड्रीम क्योर? ड्रीम जॉब कौन सा काम है जो आप चाहती हैं कि आप करें, अपने सपनों वाला काम? टू हेल्प पीपल इन एनी एंड एवरी वे दैट इज पॉसिबल। वो मेरा बचपन से मेरा वो रहा है, एंड आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स अ लॉट। वो बहुत ज्यादा लोगों का भला करने में रहते थे, हमेशा जैसे बन पड़ता था मेरी दादी और बाबा हमेशा किसी को हेल्प करते थे। और उनका एक बहुत अच्छी बात उनको लगती थी कि कर भला, कि अगर हो सके तो भला करो लोगों का, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करो। अगर तुमसे हो सकता है तो किसी का भी भला करो, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो बुरा करने के लिए कभी मत हाथ पैर आगे बढ़ाओ। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं उस बात को हमेशा मान के चलती हूँ कि जब हो सके तो तुम अच्छा कर सकते हो, नहीं हो सकता तो बैठे रहो। ये मेरा ये लाइफ का ये है। कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एनॉय करती है आपको लाइफ में? म्यूजिक सुनना। वो मैथ्स वाला डॉक्टर को छोड़ के, उसका नाम मत लीजिएगा। म्यूजिक सुनना सर। अच्छा, म्यूजिक सुनना एनॉइंग है आपके लिए? मैंने पूछा अनोइंग नहीं बोले, सॉरी, अच्छा अनोइंग बोल रहे हैं। अनोइंग मुझे लगता है लोग है ना, अब ये बहुत सी ऐसे बात बना के जब बोलते हैं ना, बहुत स्पीड टॉक करने लगते हैं। वो जो बिना फीस के वकील बनने वाले लोग, यू मीन टू से? नहीं, जो बहुत बनावटी बात करते हैं ना, वो मुझे बहुत अनोइंग लगता है और मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे एकदम फील हो जाता है कि वो बनावटी बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता बात करना। एंड आई लव प्यार किसको करते हैं? नेचुरली मेरी फैमिली होगी, हम एक बच्चा को भी नहीं बोल सकते मेरा दोनों बच्चा और हस्बैंड, कोई भी सब तीनों को सबसे ज्यादा करेंगे। दोनों में बाल नोचा नोची हो जाएगा अभी तो। हाँ, बहुत भयंकर। मम्मा उसका नाम ली तो मम्मा उसका नाम ली, इससे नहीं, दोनों। वो चीजें जो अपने आप में आप बदलना चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा कम ऑनेस्ट रहूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और ये मेरा बचपन से ट्रेट रहा है, और अब मैं चेंज भी नहीं कर पा रही हूँ, करना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसी चीज है कि थोड़ा सा आदमी को पॉलिश्ड होना चाहिए। मुझे अब लगता है कि लोगों को थोड़ा सा पॉलिश्ड होकर चलना चाहिए। मुझे लगता है नहीं, बिकॉज अभी जितने लोग आपके साथ खड़े हैं ना, वो आपके रियल लोग हैं। yes. खड़े हैं ना क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी के साथ खड़े हैं। हाँ. अगर आप अनरियल होते
तो लोग आपसे कहते कि ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, और वो निकल जाते हैं। वो व्हाट्सएप जी पर सर। सीमित होता है, बट आप रियल हैं, यू आर ऑनेस्ट, इसलिए लोग आपके साथ बिल्कुल तगड़े तरीके से खड़े हैं। और आपको मैं नहीं बताऊंगा कि कितने सारे लोगों ने मुझे आपके लिए फोन किया है। सो ये तभी हो सकता है, आपकी ऑनेस्टी उनको प्रभावित करती है, और लंबे समय तक जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, अरे खाली हम ही नहीं फोन किए, हम सोचे खाली हम ही फोन किए। यार हम वो चीजें नहीं बताना चाहते ना कौन फोन किया, बिकॉज आप जितने लोग हैं इनके लिए तो मैं कहता हूँ आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अच्छाई से ताल्लुकात रखते हैं, और इसलिए इतने दिनों बाद ही आपके साथ हैं। सो व्हाट डू यू लाइक टू चूज? आपको अगर चूज करना मिले तो क्या आप चूज करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वांटिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ That's ऑलवेज, और अब तो और ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ। And मैं what चाहूंगी makes कि you जितने smile? दिन भी हूँ बहुत अच्छे से रहूं और पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिव थिंग्स करूं। और मुझे कोई, मैंने जिसको मुझे लगा कि नेगेटिव है, उन लोग को मैंने सीधा काट दिया, अपने लाइफ से हटा दिया, और आई जस्ट डोंट वांट टू मीट देम, टॉक टू देम, एनीथिंग। तो मैंने उनको छोड़ दिया कि छोड़ दो, जाओ, तुम भी भूल जाओ उनको, हम भी भूल जाते। What makes you smile? एनीथिंग विच इज फनी, एंड कुछ भी फनी देख के मुझे आप हंसा सकते हैं, कुछ भी अच्छा क्लिप देख के मुझे आप हंसा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने दुख से बहुत दुखी हूँ तो मैं हंसूंगी नहीं, मैं खिलखिलाऊंगी नहीं। अगर मुझे कुछ अच्छा चीज देखने को मिल गया, कोई डॉगी बहुत प्यार से ऐसे लेटा हुआ सोफा पर, बहुत प्यारा सा उसका चेहरा है डॉगी का, तो मुझे हंसी आएगी और मैं उसको देख के खुश होंगी। ये मेरा नेचर है। एक सीक्रेट चीज जो आपने बरसों से अपने अंदर छुपा के रखा हुआ हो और कभी किसी को नहीं बताया हो, और वो शायद आपको बहुत ज्यादा चुभता हो, अगर आप आज बता सके तो बताइए। या कुछ भी सीक्रेट नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं, हम बताएं हाँ रमा बहुत लड़ाकिन थी बचपन में। ये सही है, ये सही है, ये सही है। पूरा सीधा भिड़ जाते हैं, आदत अभी भी है। बेस्ट वर्ड मतलब वाज अगर कोई चीज लड़ाकिन। ये हाँ पसंद नहीं आया तो आराम से बोल देंगे कि हाँ ऐसे, मतलब वो उतना नहीं सोचते हैं कि मतलब अरे वो कैसे इफेक्ट कर जाए, वो सब, अरे उतना नहीं सोच पाते हैं। सोचने की मतलब वहाँ पर शक्ति मेरी खत्म हो जाती है जब कुछ वो है। क्वालिटी थी मेरे में कि मतलब आराम से बोल देते थे। वही तो कहते हैं जिसको ऑनेस्टी ना, कि मतलब ये नहीं सोचे कि अच्छा ये आदमी को कैसे कर सकता है या हमारा बुरा भी कर सकता है, तो तुम थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। ये हमको कभी नहीं समझ आया। अब एक बात तो है, आप दिखाइए कि जो लोग हमसे लड़ाई करें हम ये सोचेंगे कि ये बहुत ऑनेस्ट है। नहीं, बट तो तुमको भी पता है, इवन माय डिट्रैक्टर्स एंड माय एनिमीज नो कि रमा जो बोलेगी वो झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको झूठ बोलना ही नहीं आता है। एक बात मैं बताऊं, मेरी एक टीचर थी 6th स्टैंडर्ड में, पूरा क्लास में आपको बता रही हूँ, रचना दी सुनिएगा। 6th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर थी, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो शायद बैठी मिसेस विधु मैम। और वो जब मतलब मेरे को 6th नहीं 8th में, और मैं कुछ पूरा क्लास चिल्ला रहा था, मतलब सब लोग हल्ला कर रहे थे, देयर वाज नो टीचर इन द क्लासरूम, एंड प्रिंसिपल के बहुत पास में हम लोग का कमरा था 8th से। उसके बाद आई बस और वो सीधा हमको उठा दी, बोली रमा टेल मी व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो मैं उसमें कुछ नहीं शामिल थी, हल्ला हो रहा होगा तो हम भी कर रहे होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई 2 ग्रुप लड़ रहा था, तो मैंने बता दिया कि ये सही बात है। तो उसके बाद वो लड़की बाद में गई मिस के पास स्टाफ में बोलने के लिए। मिस विधु रानी बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि आई नो रमा इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, उसने जो बताया वही हुआ होगा क्लास, क्योंकि मुझे झूठ बोलने नहीं आता था। मैंने तो बोल दिया सीधा, जो पूछा उन्होंने मुझे खड़ा करके पूछ दिया। मुझे तो लगा मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मैं तो डरी हुई थी, तो आराम से हल्ला भी करते थे, लेकिन वो जो पूछी मैं बता दिए कि हाँ ये ऐसे करे थी, ये कर रही थी, मैंने बता दिया। और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? फिल्म नहीं, लेकिन हमको पुरानी फिल्म सब मुगले आजम टाइप की मूवी से बहुत अच्छी लगती है। अभी वाली कौन पसंद था आपको सबसे? मुगले आजम बहुत पसंद है। अच्छा, चौधरी का चांद, वो सब मुझे बहुत पसंद है, वो सब मूवीज मुझे बहुत पसंद है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसको आप बार बार गुनगुनाते हैं, स्कूल सॉन्ग को छोड़? कोई नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जो मूड में आ गया, जो भी सुन रहे हो कहीं वो ही गाने लगते हैं। चलिए, आपका फेवरेट मास्क कौन सा है, N95 या सर्जिकल मास्क?
N95 तो फेवरेट नहीं है, वो दूसरा ही वाला। अब नीता तुम इंटरवीन करो, इसे बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, लूट लिया है। डॉक्टर अभिषेक शंकर, आपका फेवरेट पेशेंट कौन है? Many, all are favorite. All are favorite. Patient is favorite. डॉक्टर अभिषेक शंकर, आप कब से डॉक्टर बने हैं? I am practicing medicine since entered in 1999, passed MBBS in 2005. From there, I am practicing oncology. Did you study in AIIMS? No, I studied in Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha, MBBS, then MD from Christian Medical College, then AIIMS. Then one year fellowship in US NCI, National Cancer Institute. My daughter will be a medical doctor next year here, and hoping she will be like something, follow on your footsteps. It's amazing to have a doctor like you. Thank you, ma'am. और so रमा जी, आप ही बताइए, आपके और क्या कहना चाहेंगे आप सबसे? मैम, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब मैं कुछ नहीं, आप थोड़ा सा बताइए, या कोई और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता दूंगी, बट वैसे आई एम थ्रू। मैंने काफी बोला है और बहुत बिंदास स्टाइल में बोला है आपने। बहुत ही इंस्पिरेशनल वाली बातें बताई हैं आपने। और इनफैक्ट मैं तो जिस मोड़ पे हूँ अपनी जिंदगी में, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है इस वक्त। और कोई और कुछ पूछना चाहता है? दोनों यहाँ डॉक्टर भी हैं, रमा भी हैं। And any interesting story from the teacher side? I think 2 teachers have joined. They can always share. Yeah, that would be. Tejashi ma'am and Bidhu ma'am. बोलिए। It was extremely nice hearing Rama. We are so proud of her. Rama has always had a very positive approach, and this is what has uplifted her. And today, whatever she is, it's because of her willpower, her positive approach, her honesty, and all that she is, sharing has really given us a goose wimple. May God bless her. May she recovers from the ailment that she is having. God bless you, Rama. My best wishes and love to you. Thank you. Even before Nita, hello, Nita. Yeah. Hello, Nita. I think there will be some questions in the chat box. Can you check that? Some questions. Yeah, I'll check that. I thought yeah, we'll have Tejrashi ma'am speak first. Okay. Yeah. Thanks, Lisa. Yeah. Rama, even before you said you were honest, I sent a message saying that I'm so proud of you, and you've always been upright and honest. Very straightforward person. Sometimes it may hurt a person for a little bit, but you know that Rama has always been very, very honest and upright. And I was always very, very proud of her for this particular reason. Because there are very few people who are so directly honest or upright. So I've seen her grow up. I've seen her, and we used to exchange good morning messages every day until I stopped getting her. So I was wondering why she was not replying to me, and I was concerned. Then my daughter-in-law from Delhi rang me up to tell me that Rama is not well these days. I do not know that Rama is not well. They are friends of Rama from Delhi, my nephew and daughter-in-law. So they told me, and I was quite shaken, to know that Rama is not. And then I felt that I should have inquired. But then she kept giving me, she said, no, Chachi, don't ring up. I will keep giving you the news. So she gave me news about Rama very, very regularly. And I'm so happy to see Rama today.
best stuff and all, and God willing, everything will be okay, and Rama will be absolutely well. And with her spirit, her courage, and it takes courage, like she said, with her courage, she's going to be an example for all of us, how we can fight through something with the spirit that she has. God bless. Thank you. We all love you so much. Same I Thank you, Teja. Thank you to Ronika also, ma'am. Can I come in, ma'am? Yes. Can I come in? Can I just read the? Yeah. Okay. You can. देखिए जो अर्चना जी ने जो वर्ड कॉइन किया लड़ाकनी, आई थिंक शी सेड लड़ाकनी और समथिंग, न्यू वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। लड़ाकिन बिहारी वर्ड है। लड़ाकिन एंड सच्चाई, you know, because she also mentioned, Ramma ji mentioned about her truthfulness, तो उसमें मैंने शेयर डाला है, उसमें लिखा चैट में भी डाला है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लड़ाकिन एंड सच्चाई। ये शोला हूँ, ये रमा जी शोला है, भड़कने की गुजारिश नहीं करती, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं। शोला हूँ, शोला है, भड़कने की गुजारिश नहीं करती, मगर सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश ही नहीं करती। थैंक यू। क्या बात है, शुक्रिया। आप किधर जाने वाले? We all pray that you will come out here and hearty from this episode. We are very sanguine about that. We pray for you well. Thank you. Thank you. Okay, I'm just going to have a quick read of the questions. पहला क्वेश्चन है, कोविड पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ इशू इस कदर हावी हो गया कि लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या परामर्श है? ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब के लिए है मेरे ख्याल से, या दोनों के लिए, रमा के लिए भी है? मुझे लगता है कि एनी आंसर जब आप सुसाइड पे बोलते हैं तो आपको एक वार्निंग देना पड़ता है कि पीपल विचलित हो सकते हैं, तो जो हो सकते हैं वो प्लीज दे आर वेलकम टू लीव, ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करिए। मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही नहीं है। कोविड-19 का ऐसे सुसाइड से कोई रिलेशन नहीं है। There is no such study that during this time suicide is more, or this may be other factors, but अभी लोग घर पे ज़्यादा रह रहे हैं, फैमिली चीज़ें जो पहले जिनको आदत नहीं थी घर पे रहने की, there more fight, there more another thing। दूसरी पॉजिटिव साइड ये है कि जो लोगों को घर पे पहले रहने का अपनी फैमिली के साथ मौका नहीं मिल रहा था, they are living happily with their family। So ऐसा I don't have heard that this is so common with the COVID-19. This is a disease of very short duration. People are diagnosed, and more than 90% of cases are healed in their first week, and those who go to the moderate disease and to the severe disease, only mortality is less than 1% in few of the states. So there's nothing to worry. This is just like another infection with the few, but you have to be cautious. You have to categorize your disease, and whenever it's needed, you need to get yourself admitted. So the places where medical system is not right in place, they are suffering more. But where there's like Kerala, they have 55,000 cases per day, but their mortality is so less because they have a good healthcare system. So, and awareness, because people are not aware. Still in the rural part of the country, people are taking it just like another viral fever, and they don't have resources to even monitor their oxygen saturation. So it's nothing like that COVID-19 has really helped more suicide cases. This is not the correct statement, and nobody can think like that. It's just an infection. You should take the right advice, and you should act on time so that everything can be all right. Thank you, Dr. Shankar. I'm just reading on all the comments. They have excellent comments. रमा जी आप भी पढ़ ही लीजिए। एक और मेरे को जो आ रहा है, किसी ने लिखा है, one suggestion to friends, please get critical illness insurance. So वो भी शायद is as good as having a positive attitude and courage. I think वो लड़ाकिन वाली बात और सच्चाई वाली बात। और क्या क्वेश्चन मैं देख रही हूँ? Am I missing something? A caring doctor like Dr. Shankar, yes, is an asset to the nation. Positive approach. Healing words, Dr. Abhishek. Rama,
your honesty, and being very strong, inspiring again, amazing, Rama. And nurses' contributions, love to hear the school stories. AIMS ka, taxpayers, that was my comment. Appreciation to HCW. HCW is government setup, yes. Again, that's the, I guess, government hospitals की बात हो रही है उसमें. और Uber drivers को, thank you. Ola and Uber, we should thank them. Inspiring, Rama, again. Question. So, एक और question है, is there anything you are doing now, Rama, which you always wanted to do for a long time, but did or could not do? But I think Dr. Shankar की questions में ये शायद आया है. Unless Rama, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस बारे में? और ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अभी कर रही हूँ. इनफैक्ट मैं अपने आप को ठीक रखना चाह रही हूँ, पॉजिटिव रखना चाह रही हूँ. अलग से ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं पहले करना चाह रही थी और अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ. मेरी डॉक्टर ने एक बार कहा था कि मम्मा मुझे उसको शादी करने का बहुत मन है. अभी शी इज जस्ट 20, तो अधिकतर बच्चे आजकल शादी नहीं करना चाहते हैं. बट शी सेड कि मम्मा मुझे बहुत मन था कि आप मेरी शादी में गाना गाते. तो ये मुझे बहुत हर्ट किया था और मैं बहुत रोई थी अकेले कि मुझे पता नहीं है उसकी कब शादी होगी और मैं कब रहूंगी कि नहीं रहूंगी. बट आई टुक इट पॉजिटिवली. आई सेड कि मैं तुमको अभी एक पेन ड्राइव ला दूं नीचे से, मैं कुछ गाने तुम्हारे लिए गाना स्टोर कर देती हूँ. जब तुम्हारा शादी का फंक्शन शुरू हो गया ना, सबसे पहले मम्मा का गाना तुम सब लगा देना, उसके बाद और आएगा. तो मैंने एक फैमिली वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप में शताक्षी को मैंने भेजा था. शताक्षी ने फैमिली ग्रुप में वो व्हाट्सएप भेज दिया कि मम्मा मेरे लिए गीत गा रही थी. तो मुझे भी अच्छा लगा. बहुत लोगों का कमेंट भी आया कि रमा, बिकॉज उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, वो स्टेज कैंसर पेशेंट है, वो गाती भी है गाना और गीत गाई. और मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ गीत का बना के तुम्हारे लिए चली जाऊंगी, क्योंकि जो भी हो, आई हैड टू टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज शी वाज क्राइंग एंड शी वाज टेलिंग दिस टू मी. तो मुझे बहुत दुख लगा. तो मुझे लगा मैं क्या कर सकती हूँ अपने के लिए. तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जो मैं कर सकती थी बस वही था कि मैं उसके लिए गाना का स्टोर बना के चली जाऊँ. तो वो मैं एक काम अभी नहीं कर पाई हूँ बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मी द पेन ड्राइव फ्रॉम डाउनस्टेयर. एक पुराना वाला मैंने एक दो जो बस नीचे से करी थी. एंड माय हस्बैंड से इस तरह का पेसिमिस्टिक थिंक मत करो कि तुम गाना अभी से स्टोर करो और ये करो, तो तुम मत करो. तो इसलिए बच्चा लोग जाता नहीं है लाने की, पापा बिगड़ेगा इसीलिए. बट आई वाज टेलिंग कि तुम ला दो तो हम कुछ गीत उसमें अपना फेवरेट जो तुमको अच्छा लगता हो वो सब हम लगा उसमें रख देंगे. तो अभी वो एक रह गया, वो एक मुझे करना है बिकॉज शी हैज सेड दैट. Oh, that is so beautiful. That is बहुत ही brave heart हो आप तो बहुत ही सीखने को मिल रहा है.